हेलो बच्चों। डियर स्टूडेंट्स, आज हम ग्रामर की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। ग्रामर की सीरीज़ में फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू पार्ट्स ऑफ स्पीच। आई होप you know what is the part of speech. How many kind of part of speech? There are 8 parts of speech. First of all, just a minute. फर्स्ट है नाउन, सेकंड है प्रोनाउन, एंड थर्ड इज एडजेक्टिव. We will pronounce it as adjective. Fourth is adverb. Fifth is verb. Sixth is preposition. Seventh is conjunction. And eighth and the last is interjection. We will write it here. We erase it first, then we will write here interjection. I hope you are able to understand. There are 8 parts of speech. Now we will start with the noun. First of all, we will erase it. Then we will understand about the noun. What is noun? I hope you know that. Noun, जिसे हिंदी में संज्ञा कहते हैं. Noun is the name of a person, a place, or a thing. As Ram is the name of a person. Mumbai is the name of a place. Book, pen, these are the name of a thing. In other words, the name of anything, person, place is called a noun. Now we will discuss about the kinds of nouns. There are 5 kinds of nouns. First is proper noun, second is common noun, third is collective noun, and fourth is abstract noun, and the last is material noun. First of all, we will discuss about the proper noun. Proper noun is the name of a particular person, place, or thing. A proper noun begins with a capital letter. प्रॉपर नाउन जो होता है वो होता है किसी पार्टिकुलर, किसी विशेष व्यक्ति का नाम, प्लेस या थिंग. कोई विशेष नाम होता है ना, हर किसी का नाम होता है. तो जब हम किसी पार्टिकुलर विशेष व्यक्ति का नाम, किसी विशेष जगह का नाम या किसी विशेष चीज़ का नाम बोलते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन. And the most important thing, a proper noun begins with a capital letter. For example, Delhi is the capital of India. Sachin Tendulkar is a good player. The Taj stands on the bank of the Yamuna. In these examples, Delhi and India, these are the proper nouns. Delhi is the name of a city and the India is the name of a particular country. And Sachin Tendulkar in the second example is the name of a particular cricket player. I hope you know him very well. The Taj is the name of a
particular building, and the Yamuna is the name of a particular river. Such nouns are called proper nouns. Second type of noun is common noun. Common noun stands for persons, things, or places of the same class. For example, the dog is a faithful animal. The river was in flood. The book is misplaced somewhere. अब कॉमन नाउन को समझने की कोशिश करते हैं हम. कॉमन नाउन होता है किसी पर्सन, थिंग और प्लेस जो किसी एक क्लास से बिलोंग करते हैं. जैसे मैं बोल दूँ मैन, मैन इज़ द क्लास फॉर ऑल द मैन्स. बट आई से महेश, इट इज़ द पर्टिकुलर नेम ऑफ ए पर्सन, है ना. The dog, we see the examples. The dog is a faithful animal. The dog belongs to the class of all the dogs. And the river is the class of all the rivers. यानी कि इसकी जाति को बता रही है ये. जब कोई थिंग किसी की जाति को, किसी की क्लास को बिलोंग करती है तो उसे कॉमन नाउन कहते हैं. जैसे आई से द डॉग, लेकिन द डॉग तो हो गया कॉमन नाउन. लेकिन व्हेन आई से मोती, मोती इज़ द नेम ऑफ माय डॉग, तो मोती हो गया प्रॉपर नाउन. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. जैसे द बुक बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ ऑल द बुक्स. बट व्हेन आई से द रामायणा, द महाभारता, द गीता, दीज आर द नेम ऑफ particular books, that is called proper noun. Next we will discuss about the collective noun. अब collective noun क्या होता है? A collective noun is the name of a group of persons or things. For example, एक collective noun क्या होता है? एक ग्रुप का नेम. जब हम किसी चीज़ को एक ग्रुप के अंदर डाल देते हैं तो that is called collective noun. एग्जाम्पल देख लेते हैं हम एक बार. आई सा ए बंच ऑफ ग्रेप्स. अब हमने ग्रेप को कलेक्ट करके किस में डाल दिया? बंच में. तो बंच ऑफ ग्रेप्स क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन. दिस इज़ द क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स. अब जब एक साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हों तो हम उसको क्या बोलते हैं? क्लास ऑफ स्टूडेंट्स. तो ये क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन. आर्मी स्टैंड्स फॉर द सोल्जर्स का ग्रुप होता है ना, उसको आर्मी बोलते हैं. तो दैट इज आर्मी इज ऑल्सो ए कलेक्टिव नाउन. ए फ्लॉक ऑफ शिप इज ग्रेजिंग आउट इन द फील्ड. ए फ्लॉक ऑफ शिप इज ऑल्सो ए कलेक्टिव नाउन. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? दिस इज अ डिफरेंट नाउन because we can't touch it, we can't see it. ओके. बाकी जो नाउन्स होते हैं हम उनको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं. लेकिन जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है वो हमें किसी की गुणों के बारे में बताता है, यानी उसकी क्वालिटी को डिफाइन करता है. एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन रेफर्स टू क्वालिटी, एक्शन, आइडिया, फीलिंग्स एट्सेट्रा. एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? किसी की क्वालिटी को दिखाता है, किसी के कार्य को कितना अच्छा करता है, वो कितनी कुशलता से करता है, कोई आइडिया कितना अच्छा है, या हम उसको सिर्फ फील कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. अब ऑनेस्टी जो होती है हम उसको सिर्फ फील कर सकते हैं, हम उसको देख तो नहीं सकते ना, इसलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ऑनेस्टी. गांधी जी प्रीच्ड नॉन वायलेंस. अब गांधी जी का गुण था, गांधी जी के अंदर क्वालिटी थी कि वो हर काम अहिंसा से करते थे, नॉन वायलेंस से करते थे, इसलिए नॉन वायलेंस इज ऑल्सो कॉल्ड अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ नाउन. नेक्स्ट वी विल डिस्कस द लास्ट काइंड ऑफ नाउन, मटेरियल नाउन. The name of a thing or substance that exists only in the form of a mass is called a material noun. अब material noun क्या होता है? Material noun होता है कोई भी चीज़ या कोई भी substance जो exist करती है, जिसको हम
मतलब जो मटेरियल के रूप में होती है ना, जिसका मास होता है, जिसमें जो जगह घेरती है, उस चीज़ को हम मटेरियल बोलते हैं। जैसे वुड, सिल्वर, गोल्ड, दीज आर कॉल्ड मटेरियल्स। फॉर एग्जाम्पल, द चेयर इज़ मेड ऑफ वुड। जो चेयर है वो लकड़ी की बनी हुई है, तो वुड क्या हो गया, एक मटेरियल। मिल्क इज़ द परफेक्ट डाइट। अब मिल्क क्या है, मिल्क भी एक मटेरियल है। गोल्ड इज ए प्रेशियस मेटल। अब गोल्ड है, गोल्ड भी एक मटेरियल है, तो मटेरियल नाउन हो गया क्या इसमें, गोल्ड। शुगर टेस्ट स्वीट, और जो शुगर है वो दैट इज़ ऑल्सो ए मटेरियल नाउन। I hope students you have understand about the noun, their types and जो एग्जाम्पल्स मैंने करवाए हैं उससे आप अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक यू। आप इनको अच्छे से रिवाइज करना, अच्छे से पढ़ना, अच्छे से अंडरस्टैंड करना। कुछ समझ ना आए तो मेरे को कमेंट करना। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी करना अगर आपको अच्छी लगे तो। बाय।